हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? सो इस बार मैं वीडियो थोड़ा डिफरेंट तरीके से शूट कर रहा हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग आउटसाइड द एनवायरमेंट of this place, this studio, the study room that I have. I don't want to review my books like this or talk about a book video, and I'm coming up with something really entirely different. I'm going outside of this place, in fact outside my house, where I'll interact with people, and I hope you like it. So here I go. This is my place and I'm shooting right here. Hopefully आज का वीडियो आपको पसंद आए and you like the whole feel of it. That's the idea. And so we are going downstairs and then we'll go into the car and start the video. और ईश्वर ने हम सब के लिए कोई ना कोई जीवन साथी तय जरूर कर रखा है. मेरा जीवन साथी तो तय है. कि वो इस It's books. मेले में बिल्कुल अकेले हैं. जनाब, ऐसी शिकायत हमारे इस नायक को ही जिन्हें अपनी तरह दिल के लिए एक दोस्त की तलाश है. दोस्त की तलाश. सो टुडे जो हम वीडियो शूट करने वाले हैं वो एक डिफरेंट स्टाइल में होगा. I've come out, as you can see. I'm already on the street and we'll meet with people, right? And talk about books. So we are the iconic Sector 18 market in Noida और हम यहाँ पर ढूंढेंगे कुछ लोग जो बात करेंगे हमें बुक्स के बारे में. आप देख सकते हैं, जैसा कि थोड़ा दिखाना इस तरफ. So I hope you like this kind of chit chat with people who like books, and I'm hoping to find some people, and let's see if I'm able to interact with people who like book reading. हम कैफेज जाएंगे, हम टी स्टॉल जाएंगे. एक टी स्टॉल आप यहाँ भी देख सकते हो. तो अब चलते हैं, देखते हैं. हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों से मिल सकें, बात कर सकें. Okay, so we have got our first viewer. Hopefully he likes books. Sir, can you tell us your name first? And this is a book YouTube channel. So what we're doing here, I'm just trying to do an experiment where I'm talking to people at random and hoping that with this approach, people are interested in reading more books. So I've got some books with me here, and then we'll start. Please tell me your name and in case anything that you want. So thank you. It's a very good initiative, and I love people encouraging people to read books. Reading is one thing that always help people to go in self, engage in more wisdom, explore world through the books or author's eye. And also at this point of time when digital and electronic media is taking over, when people start again going back to their roots, that is books, the written books, that is going surely to help everyone, including me. And thank you so much. It's a nice initiative. I hope by this, with the help of this channel, reviews and your initiative, more people will go to libraries, spend some time in peace. Now we always stick to our TV, always stick to our mobile, but the thing you can get from different books, different perspectives, different scenes, you will love it. And thank you so much. Thank you. We'll talk about some books. If you're interested in these books, I'm not sure, but let me pick. There is this book called This Underground Railroad. It's an award-winning book. It won the Pulitzer Prize back in 2017. This is a very popular book by a popular Indian writer, Chetan Bhagat. Probably youth will associate with it a lot. A movie made on this particular book. And then we have this Alchemist. It's a bestseller. It's a classic. Anyone can read it, and it's got beautiful imagery and description. So what do you want to start with? This is Prophet Khalil Gibran, and then this. I got almost everything. I want you to introduce yourself to this, people. What do you do, and what's your name? So my name is Manish Jha. I am popularly known as MJ, and my major profession is political analysis. Oh wow! I work in political domain. I love reading about our ancient history,
I love reading about international, history. Okay. I love reading about our own, different religions. Have you read this book by any chance? No. It's a historical fiction. This is not there. Yeah, something that I want to talk about, because since you have read all these books, I want to touch upon this particular topic. Let's Start with this. So I'll talk about this book. It's by Colson Whitehead, The Underground Railroad. Somebody who's keen on reading will pick this book. And in this book, he's talking about a fictional railroad. So this particular book is about set in Georgia, and this girl called Cora is is born in plantation. She's not aware of her roots, but she knows she's a slave. So what he's depicted in this book is the treatment of this slaves, the kind of horror they are actually subjected to, and how difficult it is to live a life of a slave. So she wants freedom. Her mother Mabel has run away, and she does not know about. So she is, even enslaved, she has a category where she's like a stray who is not cared for even among her slave population. Just imagine a scenario. So she's living a life like that, and suddenly she meets somebody who says that let's run north, and that's where the story picks up. And then in this there are certain imageries that I want to discuss with you. I'm sure you might want to be interested in. I think I'll just read it out to you. So there's a scene wherein this her grandmother, who's a Jari, Mabel's Cora's grandmother. So she's been transported from Africa to America. So the writer has depicted a scene wherein he's talking about the difficulty in which she is actually being transported in a ship towards America. He says that the noxious air of the hold is a part of ship which is somewhere. So she's being kept there in a condition which is really bad. So the noxious air of the hold, There's no air. absolutely, and it's noxious, No it's light. poisonous. Okay. So it is always. So it has also come through some of the books. Because Yeah. So hold is hold is something like warehouse at the lowest part of the ship, wherein people used to keep their goods. Goods, not even pets. not even pets. Not even pets, not even animals. So they were transported in that just to bypass the Dutch, the French, and the British people. And the journey, even today, the journey is so long that you can imagine people staying in a place where even no light. You don't have any idea where are you going to. Wow, you have actually explained it all. I mean, and then the line says the noxious air of the hold and the screams of those shackled to her contrive to drive Ajari to madness. I mean, she becomes mad and she wants to run away from her, people who have captured her. And, the whole tribe is captured. And they are actually capturing women of good health, young men, and they are actually killing the old and the child, or maybe who are not required on the way. I always like books which are with journeys. So I hope, do you like journey books? Yep. So that's what I've said. So when you read something related to journey, related to travel, related to history, then you actually get to know what kind of difficulties were there. Any book that you want to suggest? For now, I want to. I don't want to suggest. So first, I'll go with this Underground Railroad, written by Colson Whitehead. Colson Whitehead, and it is winner of Pulitzer Prize function in 2017. You start with this, and there is I remember there is a visual treat also there. There is a feature film released in 2018, but you cannot feel the pain until you read this book. Yeah, the film does not do justice. If you read this book, you will understand what they went through. It was wonderful talking to you, sir. Thank you so much. Thank you for your kind. You've been gracious enough to give us your time. I appreciate it. And I would love you to watch our channel in case you can. You can probably look it up. Yep. And I can give you the channel's name. It's Nagendra Bisht. That's my name under this. And this video comes, probably you can comment on it. Done. Thank you so much. Thank you. So here we met the guy whom we spoke to, the first reader. I hope we'll meet more people. We'll talk about these book videos with some other people who are interested in this kind of books.
and hopefully we'll find them. So अब हम जा रहे हैं, you know, this tea stall. Hopefully we'll find somebody here, and if you're able to find, that'll be great. Okay. So we are back with another person. शायद ये इंटरेस्टेड हो बुक्स के बारे में. इनसे पहले जानेंगे कि ये कौन है. और हम यहाँ पर भी बैठे हुए हैं एक चाय की दुकान के पास. और प्लीज़ अपना नाम बताइए. मेरा नाम अभिषेक है. अच्छा अभिषेक, आप बुक्स पढ़ते हैं? वैसे कभी कभी पढ़ता हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक, लेकिन हाँ पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ मैं. कोई याद है बुक जो पढ़ी होगी आपने लास्ट? 3 मिस्टेक ऑन माई लाइफ. थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, बड़ी अच्छी बुक है, चेतन भगत की ना. इनफैक्ट मैं अभी 2 बुक्स लेके आया हूँ. बुक्स तो और भी हैं जो आपने देखी होंगी पहले, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 बुक्स. पॉलो कोएल्हो, आपने इनमें से कोई बुक पढ़ी? चेतन भगत की 2 स्टेट्स, इसके मतलब पिक्चर भी आई है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने पढ़ी है. और बहुत ही इनोवेशन स्टोरी है इसकी. मैंने पढ़ी है इसकी मूवी भी देखी है मैंने. अच्छा, तो आप ऐसी बुक पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ. आपने ये बुक पढ़ी है पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट? तो आज इसे पढ़ते हैं. इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. ये एक स्टोरी है, जैसे इसके बैक पे आप देख सकते हो यहाँ पर. एक स्टोरी है शेपर्ड के बारे में, जो गडियारे नहीं होते जैसे जो भेड़ बकरियाँ चढ़ते हैं. तो उसकी स्टोरी है, जो कि स्पेन में है ये लड़का. और ये क्या करता है, ये अपनी भेड़ बकरी को चरा रहा होता है. अचानक से इसको एक सपना दिखता है. वो चर्च में होता है, टूटी फूटी चर्च होती है. वहाँ से सपना दिखता है कि मेरे को कोई ट्रेजर मिलेगा, मतलब खजाना मिलेगा. और वो खजाना यहाँ नहीं है, वो जहाँ स्पेन यूरोप में है, तो उसको मिलेगा अफ्रीका में, इजिप्ट में, जहाँ पिरामिड है. तो ऐसा सपना कई बार देखता है. तो उसको लगता है कि शायद मेरे सपने में कोई जान है, मुझे पता करना चाहिए. और एक जर्नी पे निकल जाता है. तो नॉर्मली ऐसे हम सब के सपने होते हैं ना, आपके भी होंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल सपने, सबके सपने होते हैं. और मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे भी सपने हैं. करेक्ट. तो जो भी आपके सपने हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स में ना प्ले होते हैं. तो इसमें बुक बता रखा है कि जो भी आप दिमाग सोचता है उसके बारे में आप सोचते रहते हो, फिर आपके सपना भी आता है, आप उसे रियलिटी बनाना चाहते हो. तो उसके लिए कितने लोग कदम उठाते हैं, कितने लोग आगे बढ़ते हैं. तो इस बुक में ऐसा बता रखा है कि दिस गाय ट्रैवल्स फ्रॉम स्पेन विच इज़ इन यूरोप, और एंडोनेशिया, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रीजन. इस बुक में बताते हैं वेयर ही ट्रैवल्स फ्रॉम एंडोनेशिया टू अफ्रीका. और अफ्रीका जाते वक्त इसका सारा पैसा चोरी हो जाता है. और सोचो उस समय इसके पास कुछ नहीं होता. तो ये कहता है कि मेरे पास क्या चॉइस है. तो इसके पास चॉइस होती है, या तो ये छोड़ दे अपना सपना, या फिर ये कहे कि मेरे को अपना एडवेंचरर हूँ मैं, इसमें यही लिखा हुआ है, और मुझे अपना सपना पूरा करना है. नहीं मतलब वाकई में अगर ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन कॉल है, क्योंकि मेरा मानना खुद है कि लोगों के सपने, सबके सपने होते हैं. मैं भी एक सपने के उसमें अपने जी रहा हूँ और मुझे भी पूरे करने हैं. सबके अपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बुक मोटिवेशन कॉल है लोगों के लिए. जो लोग शायद सपनों के लिए नहीं जीते हैं, वो सपनों के लिए जीना सीख जाएंगे. तो मुझे लगता है कि ये बुक जो है एक बहुत अच्छा जो है लोगों को हिट करेगी सर. एब्सोल्युटली. ये पता बहुत पुरानी बुक है, ये 2005 में मैंने पढ़ी थी, उससे पहले की आई हुई बुक है. और इस बुक में दिस गाय देन ट्रैवल्स टू, सोचो पैसा चोरी हो गया है, फिर ये नौकरी करता है क्रिस्टल शॉप पर. एंड देन ही फॉर आफ्टर ईयर्स टाइम जब उसका पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर इसके बारे में एक ऑप्शन आता है. फिर एक ऑप्शन आता है, या तो ये वापस अपने गडेरिया के काम में चले जाए, क्योंकि इतना पैसा जोड़ चुका होता है कि वो भी कर ले और थोड़ा पैसा भी सेव कर ले, बहुत बड़ा शेप का एक इकट्ठा कर ले. बहुत बड़ा स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल टाइम है उसमें. करेक्ट. तो डेस्टिनी होती है ना, सपने में खजाना है, चूज करूं, बड़ा सपना करूं, या फिर नॉर्मल जिंदगी चल रही सेफ सिक्योरिटी की वो पकड़ लूं. तो ये क्या करता है, कहते नहीं, मैंने सपना देखा था, मुझे पता यह था कि मैं पूरा कर सकता हूं. तो ये फिर भी अपना पैसा लेके चले जाता है. कहाँ? उस पिरामिड की तरफ जहाँ उसको पैसा मिलेगा. तो ये स्टोरी है. और इसके बाद बहुत कुछ होता है इसमें. एक एल्केमिस्ट मिलता है जो मेटल से ना सोना बनाता है, इसकी भी बातें होती हैं इसमें. तो बुक का नाम एल्केमिस्ट है. और पॉलो कोएल्हो, आपने अगर इसको नहीं पढ़ा तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें. कैसे लगी आपको ये स्टोरी? पूरी बता दूं एंड तक? बिल्कुल बिल्कुल बताइए आप जो भी, या फिर आप पढ़ना चाहोगे? मैं तो पढ़ूंगा सर. ये इतनी लंबी स्टोरी तो आप नहीं बता पाएंगे. हाँ मैं बता दूंगा, लेकिन मज़ा पढ़ने में ही है सर, मज़ा पढ़ने में आएगा. हाँ स्टोरी है, मोटिवेशन कॉल है. और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत कुछ इससे पढ़ के सीखने को मिलेगा. मैं भी पढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक अच्छा रीडर हूँ, पढ़ता हूँ. जब भी मुझे टाइम मिलता है ऑफिस से तो मैं बुक पढ़ता हूँ. मैंने ये बुक देखी है, इसके बारे में मेरे को पूरी नॉलेज मिली है कि एक मोटिवेशन कॉल है लोगों के लिए. और क्योंकि मैं हमेशा, मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है, सभी लोग आजकल के टाइम में जॉब कर रहे हैं, लोगों के पास टाइम नहीं मिलता है रीडिंग करने का, लेकिन एक अच्छा रीडर जो है वो हमेशा टाइम निकालता है बुक पढ़ने के लिए. तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट बुक नहीं है मोटिवेशन कॉल के लिए. और जैसा कि स्टोरी अभी डिस्कस हुई थी
तो बहुत कुछ शायद आपको लर्निंग के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। और गाइस मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप भी पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके इस बुक को जरूर पढ़िए। ये मतलब दिस इज़ जस्ट लाइक यू नो एक मोटिवेशन कॉल सबके लिए। आप करते क्या, आपका नाम क्या है? मैं मीडिया इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ, अरे वाह, और मैंने 11 साल मीडिया में रहा हूँ, मैं पब्लिकेशंस में रहा हूँ मैं, और मेरे लिए तो ये बेस्ट बुक है। आपका नाम क्या है? अभिषेक नाम है मेरा, अभिषेक पाठक। अभिषेक पाठक। अरे वाह पाठक जी, आप बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। होपफुली ये लोगों को इनकरेज करेगा पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रगल टाइम है, और स्ट्रगल टाइम में लोग टूट जाते हैं, और शायद ये जो लोग टूटे हुए लोग हैं, ये उन लोगों के लिए है जो आगे बढ़ सकते हैं। तो मिस्टर पाठक, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। ये आप मेरी तरफ से आपको बुक है, ये आप चेतन भगत पढ़ते हैं, एंड यू नो ये 2 स्टेट्स है, सो दिस इज़ फ्रॉम मी। आई होप यू रीड इट, एंड नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो इसकी रिव्यू करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ूंगा, और फिर बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको Thank you so much. for this gift. So this was our second reader. Hopefully we'll find more people here, and now we are going to some other place. हमने 2 रीडर्स कवर करे, एक बुक्स पढ़ते थे और एक शायद थोड़ी बुक्स कम पढ़ते थे, लेकिन इस टाइम आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट some students whom I can interact. So this is a park. Hopefully I'll find some people, some students who are interested in book reading. Let's go find out. चले क्या? We are in the park. Hopefully we'll find some people here, and यहाँ पर let's go. हेलो गाइस, ये मैं ना वीडियो बनाता हूँ बुक्स की, यूट्यूब पे। आप लोग करना चाहोगे? है 5 मिनट। यू रीड बुक्स? वंडरफुल, ग्रेट यार। सो आई, तो अभी हम आ गए हैं इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में। आप स्टूडेंट्स ही है ना? तो आई होप आप बुक्स पढ़ते हैं। ये यूट्यूब बुक का चैनल है गाइस। ये बुक्स हैं सारी जो कि मैं अभी इसकी रिव्यू भी बात करके आया हूँ बुक की। एक ये बुक है, आप लोगों ने पढ़ी बुक? एक्चुअली ये तो मैंने नहीं पढ़ी अभी, कोई सी भी इसमें से। मुझे तो पसंद नहीं है इतना कुछ खास। नहीं पसंद है ये मुझे एक्चुअल में लिटरेचर पसंद है, हिंदी से। हिंदी लिटरेचर तो मैंने हिंदी लिटरेचर की काफ़ी बुक्स पढ़ी है, काफ़ी नॉवेल्स पढ़े हैं। मैंने भी काफ़ी हिंदी के लिए बुक्स पढ़ी है, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है। चलिए, तो मैं ना आपको इन बुक्स के बारे में बताऊंगा। एक बुक इनमें से कोई पिक कर लेते हैं। मैंने इन बुक के बारे में बात कर लिया इसके कारण ये बुक अच्छी इंटरेस्टिंग लव के ऊपर है। शायद एक कॉमन चीज़ है जो सबको इंटरेस्ट करे, और ये वैसा लव नहीं है जैसा हम सोचते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लव है। ये एक सूफ़ी कहानी है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ओके गाइस, सो वील टॉक अबाउट द 40 रूल्स ऑफ लव। ये बुक मैंने अभी अपने चैनल पर रिव्यू करी है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। अलीफ शफाक इसके राइटर हैं। ये जो 40 रूल्स ऑफ लव है ना, इसमें जो बता रखा है, आपका नाम क्या था? मेरा नाम अंकित। अंकित, इसमें ना लव के ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसमें बेसिकली क्या है कि एक सूफ़ी होते हैं, वो तबरीश सूफ़ी, आपको पता होगा, जो लोग भगवान के बारे में बात करते हैं, घूमते हैं, उनका प्यार करने का तरीका अलग होता है, तो भगवान के प्यार के बारे में बात करते हैं। तो उनके 40 रूल्स होते हैं। उनको एक विजन आती है, सपना आता है कि कोई उनका पार्टनर है, जो कि पार्टनर मतलब सूफ़ी पार्टनर, जो उनका वेट कर रहा है किसी सिटी में, और ये मिडिल ईस्ट की कहानी है। तो लेकिन जब ये स्टार्ट होती है ना स्टोरी, तो स्टोरी में क्या है कि एला नाम की कैरेक्टर है, जो कि हम जैसे हैं, न्यूयॉर्क में रह रही है। उसके पति डॉक्टर हैं, बहुत सेटल्ड है, और बहुत अच्छा उसका परिवार है, 3 बच्चे हैं। बट शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि वो लव उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया है। लव मतलब केयर वाला, हाँ, जो पति केयर करे। तो पति का थोड़ा सा दिखाया है, वो आप पढ़ेंगे इस बुक में क्या है। एंड शी इज़ वेल सेटल्ड बट स्टिल शी इज़ लैकिंग दैट। तो उसको पता नहीं चल रहा कि लाइफ में कैसे मैं उसको गेन करूँ। तो भी अचानक से कोइंसिडेंटली व्हाट हैपेंस इज शी इज़ इन अ जॉब, एंड वेयर शी गेट्स टू रीड अ मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट पे एक बंदा भेजता है उसको पढ़ने के लिए। तो उसके उनकी जो सीनियर होते हैं कहते हैं तुम पढ़ के बताओ, रिव्यू करके बताओ। तो वो होती है कहानी रूमी की और शम्स ऑफ तब्रीज़ की, जो कि 800 साल पहले कोन्या एक जगह है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ दिखाया कि शम्स ऑफ तब्रीज़ को सपना आता है, जो कि एक सूफ़ी है, और वो सूफ़ी क्या करते हैं कि वो उनको सपना आता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा वेट कर रहा है, कोन्या एक सिटी है वहाँ पे, तब्रीज़ के वो होते हैं। तो वहाँ जाते हैं, एंड ही मीट्स देयर रूमी। और रूमी की कहानी सब पढ़ी है आपने? रूमी के बारे में सुना है कभी? तो रूमी एक
टीचर होते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाते हैं नॉर्मल चीज़ें, जैसे होते हैं ना रिलीजन के बारे में, और उस समय मिडिल ईस्ट में वैसे ही पढ़ाते थे बच्चों को। तो वहाँ ही मीट्स हिम एंड टेल्स हिम कि जो तुम पढ़ा रहे हो ना, इससे भी आगे एक दुनिया है जहाँ पर आप सच में उस कनेक्ट करोगे नेचर से, ईश्वर से। एंड ही टॉक्स अबाउट 40 रूल्स ऑफ लव। मदरसा में वो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन मदरसा नहीं कहूँगा, एक मस्जिद करूँगा, लेकिन वो बेसिकली उस चीज़ उन जैसे कहते हैं ना कट्टरपंथी से बाहर निकालते हैं। एंड ही टॉक्स अबाउट लव देयर। रियलिस्टिक। हाँ, जैसे कि किस तरीके से आप परमात्मा से जुड़ सकते हो, एंड शी गेट्स नो दिस, और इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो 800 साल 2 स्टोरी चल रही हैं। एक स्टोरी चल रही है रूमी की, और इसमें शमस तबरीज़ की, और एक स्टोरी चल रही है एला की। और क्या क्या होता है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो वो कैरेक्टर जो है वो रूमी, एला, सूफी और सैम्स, ये मेनली, हाँ ये फेमस कैरेक्टर है इसमें ये कैरेक्टर प्रिंसिपल कैरेक्टर यही है। बिल्कुल। और ये आप जैसे आप बता रहे हैं, ये स्टोरी दोनों, एक तरफ रूमी की चल रही है, एक तरफ एला की चल रही है स्टोरी। बुक के अंदर जो राइटर है उनकी है, एंड अदर साइड जो रीड कर रहा है उसकी है। एक तरफ एला की है, और दूसरी तरफ 800 साल पुरानी कहानी चल रही है जो पढ़ रही है उनके बारे में। वो है, 2 है ना। तो ऐसी बुक पढ़ी है कभी? सीरियसली नहीं पढ़ी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बिल्कुल आपकी अच्छी बुक है, बिल्कुल हम ट्राई करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे इसको। तो कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा लगा स्टोरी जान के कि आप जैसे जिस तरीके से बता रहे हैं कि चीज़ों को कैसे रिलेट करना, और सबसे बड़ी बात एक मतलब लव, जब मतलब प्रकृति से हो या किसी से भी हो, एक रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो वो ये किताब बता रही है, जैसे आपकी स्टोरी से मुझे पता चल रहा है। Right. तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और किताब के बारे में भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है, मुझे भी शायद पढ़ लेनी चाहिए। पढ़ते ही नहीं हो? मैं बताऊँ, सबसे बड़ी बात, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। हाँ, तो हिंदी लिटरेचर से काफ़ी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, में हमारे ग्राउंड लेवल जो हकीकत है पॉलिटिशियंस की, घर की, बच्चों की, आज हम जो एक मतलब विकास कर रहे हैं ना, मतलब एक कहाँ से कहाँ हम आ गए हैं। मतलब चीज़ें थे, आज हमारे साथ माता पिता हैं, वो किस तरीके से चीज़ें थे, आज वो जैसे जब वो दादा बने हैं, तो वो दादा और पोते के बीच में जो एक संबंध है ना, वो किस टाइप का हो गया है। आप देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटिशियंस के बारे में आप पढ़ेंगे कि पहले जो नेता थे किस तरीके से हमको बेवकूफ़ बनाते हैं, या किस तरीके से चीज़ों को लेते। तो एक मतलब उन्होंने एक आवारा भीड़ के खतरे, उनका एक जो सिंबल है ना, ये चीज़ है। बता दीजिए व्यूअर्स को कौन सी बुक के बारे में। आवारा भीड़ के खतरे, हरदेव भारी राइटर है उसके। अमेज़न पे है ये? हाँ बिल्कुल है, आप ले सकते हो उसे। आपने कोई बुक पढ़ी है अभी रिसेंटली? नहीं, मैं रिसेंटली नहीं पढ़ी कोई बुक, मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ। ये बुक पढ़ी है, ये इंटरेस्टिंग बुक है। बिल्कुल हम द 40 रूल्स ऑफ लव, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल हम पढ़ेंगे। वाली मैं पढ़ना चाहूँगी, है ना? नहीं है यूजुअली मेरे को नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, मैं दिन में पढूं या रात में पढूं, बट इसको वो एक हैबिट हो। मैं पढ़ती नहीं हूँ यूजुअली, मैं सो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, बट इसको मैं एक बार ट्राई करूँगी। So guys, this is the end of this video. हम बाहर हैं और hopefully you can hear my voice. बहुत सारी कारें नीचे निकल रही हैं, लेकिन इस वीडियो का पर्पस ये था कि हम बाहर आएँ और डिस्कवर करें एक ऐसी दुनिया जहाँ पर people are reading books or not reading books or whatever they're doing, different age groups. So I hope you liked it. So let me know in the comments below, how did you like this video? क्या आपको अच्छा लगा? Comments. I hope this will be an interesting way to know your comments. Thank you.